بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، پلیز سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن۔ بھابھی ماہم کے برابر والا مکان ہمارا تھا، ان کی پل پل کی خبر رہتی تھی۔ عرصے سے وہ بیمار چلی آ رہی تھی، میرے بچے چھوٹے تھے، ہفتے بعد 2 گھڑی کے لیے مشکل سے عیادت کو وقت نکال پاتی تھی۔ نہال بھائی بیوی کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک روز دفتر میں اپنے کلرک سے پریشانی کا تذکرہ کیا تو حفیظ نے کہا، سر آپ پریشان نہ ہوں، میری بیوی نے نرسنگ کا کورس کیا ہے، میں آج ہی اسے آپ کے گھر لے آؤں گا، وہ آپ کی بیوی کی تیمارداری کر دے گی۔ شام کو اپنی بیوی رئیسہ کے ہمراہ بنگلے پر حاضر ہو گیا۔ اس کی بیوی نے شادی سے قبل اور شادی کے کچھ سال بعد تک ہاسپٹل میں بطور نرس نوکری کی تھی۔ وہ بہت اچھی تیماردار ثابت ہوئیں۔ وہ روز صبح نہال بھائی کے گھر آ جاتی اور بھابھی کے پاس شام تک رہتی۔ بھابھی بہت بیمار تھی، چلنے پھرنے حتیٰ کہ خود اٹھ کر پانی پینے سے بھی موجود انہیں ہمہ وقت ایک تیماردار کی ضرورت تھی۔ گھر کے کاموں کے لیے علیحدہ سے ایک ملازمہ آتی تھی، مگر بیمار بھابھی کی دیکھ بھال اس کے بس کا کام نہ تھا۔ ایسے میں رئیسہ بھابھی کے حق میں فرشتہ رحمت ثابت ہوئی۔ مریضہ کا کھانا کھانا، اس کی صفائی ستھرائی اور وقت پر دوا کا خیال رکھتی تھی۔ اس طرح میرے خالہ زاد بھائی نہال کو ایک بہت بڑی پریشانی سے نجات مل گئی۔ رئیسہ کی توجہ ایک ہنس مکھ نرس کی رفاقت کے باعث وہ جلد صحتیابی کی طرف مائل ہونے لگی۔ اب ماں کے ہمراہ اس کی بچیاں بھی آنے لگیں۔ رئیسہ کی ایک 16 برس کی بیٹی اور دوسری 14 سال کی تھی۔ دونوں خوبصورت اور سلیقہ مند تھیں، ماں کی طرح ہنس مکھ اور خدمت گزار بھی تھیں۔ ایسی کہ بہت جلد بھابھی کے دل میں گھر کر لیا۔ رئیسہ اگر ان کو ساتھ نہ لاتی تو بھابھی اصرار کرتی، بچیوں کو کیوں نہیں لائی، میرے گھر میں رونق آ جاتی ہے، بڑی لڑکی گھر سنبھالتی ہے اور چھوٹی اسکول جاتی ہے، اسی لیے صرف چھٹی کے روز خود آتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر بھابھی کے دل میں بھوک اٹھتی، اے کاش میری بھی کوئی ان جیسی بیٹی ہوتی تو آج میں تنہا نہ ہوتی، لیکن اللہ کی مرضی، ان کے پاس زندگی کی ہر آشائش موجود تھی۔ شوہر اعلیٰ افسر، محبت کرنے والا تھا، شادی کو 25 برس ہو چکے تھے، کبھی ایک دن بھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا، حتیٰ کہ اولاد نہ ہونے کا احساس بھی کبھی نہ دلایا۔ اللہ تعالیٰ نے دولت، نوکر، گاڑی، بنگلہ کیا کچھ نہ دیا تھا، مگر گود سونی رکھی۔ سب نعمتیں پا کر بھی ماہم کا دل خالی سا رہتا تھا۔ انہیں اولاد نہ ہونے کا غم تھا، مگر کسی سے اظہار نہ کرتی تھی۔ لیکن رئیسہ میں کوئی بات ایسی تھی کہ بھابھی اس کے ساتھ اپنے دکھ بانٹنے لگی۔ وہ کہتی، رئیس صاحب مجھے اپنے سے زیادہ میاں کا غم ہے، روپیہ پیسہ دھن دولت یہ جائیداد کس کام کی ہے جب ان کا نام لیوا کوئی نہیں تھے، کاش میں کسی طرح یہ خوشی ان کو مہیا کر سکتی، میرا بس چلے تو میں اپنے میاں کی دوسری شادی کروا دوں، یوں بھی بیمار رہتی ہوں، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، انہیں تو خوشیاں مل سکتی ہیں، کیا کروں، لیکن وہ دوسری شادی پر کبھی راضی نہیں ہوں گے، مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں نا۔ رئیسہ باتیں خاموشی سے سنتی رہی اور ان کی دلجوئی بھی کی کوشش کرتی رہی۔ رئیسہ نے 3 ماہ لگاتار بھابھی کی تیمارداری کی، آخر ان کو بستر سے اٹھا کر چلنے پھرنے کے قابل کر دیا۔ اس عرصے میں رئیسہ کو اچھی طرح علم ہو گیا کہ نہال صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، کشمالہ کی ابو، اگر تم اپنے صاحب کو دوسری شادی پر آمادہ کر لو تو ہمارے نصیب جاگ سکتے ہیں۔ ان کی بیگم بانجھ ہیں اور ان کی بھی یہی آرزو ہے کہ نہال صاحب کی اولاد ہو جائے، تم کوشش کرو کہ شاید وہ دوسری شادی کر لے۔ نہال صاحب ریٹائرڈ ہونے والے ہیں، ان کی عمر تو دیکھو، اس عمر میں بچے بھی ہوئے تو اس کے کس کام کے، جب وہ جوان ہوں گے تب صاحب پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پھر ان کی دوسری شادی سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمارے نصیب کس طرح جاگ سکتے ہیں کہ ہم اپنی کشمالہ سے اس کا رشتہ کروا دیں، رضوان کو بھی وہ نوکری میں لگوا دیں گے اور پھر تمہاری ترقی بھی ہو جائے گی، برسوں سے کلرک ہی چلتے آئے ہو، اب تو LLB بھی کر لیا ہے تم نے، یہ ڈگریاں صندوق میں دھری کی دھری رہ جائیں گی اور تم میٹرک پاس ہی گنے جاتے ہو، گریڈ نہیں بھر پاتا، بغیر سفارش کے ہماری بیٹی 16 برس کی ہے، نہال صاحب سے عمر کا تو بہت زیادہ فرق ہے، ایسی بے تکی بات سوچنا بھی غلط ہے۔ ارے کوئی غلط نہیں، غربت اور فاقہ کشی سے تو کہیں بہتر ہے کہ دولت اور عیش و آرام مل جائے۔
निहाल साहब अभी रिटायर्ड नहीं हुए, इतनी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं। इनसे ज़्यादा उम्र के दूसरी शादी कर लेते हैं। दिन रात कान खा खा कर रईसा ने शोहर को आमादा कर दिया कि इतने अच्छे इंसान के लिए औलाद की खुशी के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, जबकि इनकी बेगम भी राज़ी हैं। हफीज़ ने अपने साहब के कानों में दूसरी शादी के फ़वाइद गिनवाने शुरू कर दिए। निहाल अपने इस मातहत क्लर्क की कारकर्दगी और उसके घर वालों की खिदमत गुजारी से बहुत खुश था। वो हफीज़ की हर बात दिल के कानों से सुनते थे, इसे अपना हमदर्द, मुखलिस और गमगुजार समझते थे। जब इसने इनकी दुखती रग पर हाथ रखा तो वो दूसरी शादी के बारे में सोचने पर आमादा हो गए। ताहम उन्होंने अपने मातहत से कहा, हफीज़, तुम्हारी बात तो दुरुस्त है, मगर मेरी बीवी राज़ी नहीं होगी। वो बहुत अच्छी है और मेरी वफादार भी है। अब बस बीमार रहने लगी है तो क्यों इन हालात में मैं इसे दुख पहुंचाने वाली बात करूं। फिर मुझे अब कौन रिश्ता देगा। सब जानते हैं कि मेरी बेगम बीमार है। मैं इस हाल में इनसे मुंह नहीं मोड़ सकता। लोग क्या कहेंगे। लोगों की फिक्र आप ना करें कि वो क्या कहेंगे। जहाँ तक रिश्ते का मामला है तो आप फिक्र ना कीजिए, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। अगर आप कबूल करें तो मेरी बीवी से बात करें। ये तजवीज़ उसी की है कि हमारी बेटी कशमाल आपकी बेगम की खिदमत के लिए आपके निकाह में दे दी जाए। आपकी बेगम हमारी बच्ची को पसंद करती हैं और इनके पास रहती रही हैं। हर तरह से उनका ख्याल भी रखेगी। ये अजीब बात निहाल सुनकर परेशान हो गया। हम बीमार बीवी से वफादारी एक मजबूरी थी, वरना वो भी औलाद की खुशियों को तरसते थे और अब तन्हाई भी महसूस करते थे। 16 बरस की कशमाला का खिला खिला खूबसूरत चेहरा इनकी नज़रों में आ गया। क्या इस उम्र में ऐसा कमसन जीवन साथी भी मैसर आ सकता है। ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। हफीज़ ने कहा, साहब, आपका ये हुदा, दौलत, जायदाद किस काम की है, जिनका कोई वारिस ही नहीं, हत्ता कि आपका कोई भाई भतीजे बहन भांजा भी नहीं है। इस पर निहाल ने कहा, ठीक है हफीज़, मैं सोचकर जवाब दूंगा। घर आए तो कुछ खोए खोए थे। बीवी ने वजह दरियाफ्त की तो बोले, क्या कभी तुमने रईसा से मेरी दूसरी शादी कराने की ख्वाहिश का इजहार किया था। जी हाँ, मेरा बस चले तो मैं आपका दामन औलाद की खुशियों से भर दूं। बीवी के मुंह से ये कलमात सुनकर निहाल खामोश हो गई। दोबारा ये तज़किरा ना छेड़ा। इधर रईसा ने अपने शौहर के साहब को अपने बच्चों की सालगिरह के बहाने और कभी इनके पास होने की खुशी में पार्टी मुनक्कद करके बुलाना शुरू कर दिया। निहाल भी अपने मातहत क्लर्क हफीज़ के घर चले गए। लड़की को बगौर देखा तो बहुत अच्छी लगी। इनके जहन ने कशमाला को कबूल कर लिया तो हफीज़ और रईसा की काविश रंग ले आई। उन्होंने कशमाला से शादी पर आमादगी जाहिर कर दी। अब मरहला था भाभी माहम को मनाने का। इसकी जरूरत निहाल भाई में ना थी। तब रईसा ने तजवीज़ दी कि फ़िलहाल उन्हें इस बारे में ना बताया जाए, कहीं दोबारा ही बीमार ना पड़ जाएं। दरअसल औरत मुँह से कह भी दे कि हाँ मुझे कबूल है, वो अपने शोहर की खुशी के लिए दूसरी शादी, मगर दिल से कोई औरत कबूल करने पर राज़ी नहीं होती। निहाल भी यही चाहते थे कि वो बीमार बीवी को दुख ना दें। दूसरी शादी करनी ही है तो निकाह पढ़वा कर इस बात को बीवी से पोशीदा रखें। जब औलाद होगी तब देखी जाएगी। उन्होंने अपनी शर्त से हफीज़ और रईसा को आगाह कर दिया। रईसा ने कोई उलझन ना डाली। वो चाहती थी कि हर सूरत में निकाह हो जाए, फिर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। कशमाला का निकाह माँ बाप के घर पर निहाल से हुआ और वो वहीं रहती रही। अब निहाल ससुराल जाकर नई बीवी के दर्शन कराते थे, लेकिन ये कुदरती बात है कि जब अफ़वाह में फ़र्क आ जाए तो रवैये में भी फ़र्क आ जाता है। यही कुछ भाभी माहम के साथ हुआ। वो बीवी जिसके साथ निहाल ने 25 बरस हंसी खुशी गुजारे थे, जब वो बदले बदले नजर आने लगे तो भाभी ने भी महसूस कर लिया कि कुछ गैर मामूली बात वाक़ई हो चुकी है। तब उन्होंने आखिर एक रोज़ अगलवा ही लिया कि इनके सरताज दूसरी शादी की जुरात के मर्तकब हो चुके हैं। वो खूब रोई। इतना धचका लगा कि ये तक न पूछा कि किससे दूसरी शादी की है। बस इसी कदर कहा कि देखो, मेरी मौजूदगी में कभी दूसरी औरत को इस घर में मत लाना, वरना मैं जान से चली जाऊंगी। हाँ, इस घर के अलावा
जहाँ चाहे रखो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतनी इजाज़त भी निहाल भाई को बहुत थी। अल्लाह ताला की नवाज़िश हो गई कि जिस मकसद के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी वो पूरा हुआ और कशमाला का पैर भारी हो गया। माँ भाभी को ये बात कैसे बताते, जबकि वो तो कह चुकी थी कि कभी दूसरी बीवी का तज़किरा भी मेरे सामने मत करना। और फिर वो वक़्त आ गया जब वो पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी। तब रईसा ने दामाद से कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी आपकी औलाद को आपके ही घर में जन्म दे। जब बच्चा बड़ी बेगम की गोद में डालेंगे तो वो आपकी खुशी को अपनी खुशी समझकर कशमाला को भी कबूल करने पर आमादा हो जाएंगी। निहाल के लिए ये खुशी ऐसी थी कि वो हर बात रईसा की मान रहे थे। घर आकर बीवी को कहा कि माँ, हम मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं और वो चंद रोज़ हमारे घर में ठहरेंगे। ये मेरे आला अफसर्स हैं, घर की अच्छी तरह से सफाई करवा दो। तुम्हें चंद दिन के लिए मेके में रहना होगा। जब मेहमान चले जाएंगे तो मैं ड्राइवर भेज दूंगा या फिर खुद लेने आ जाऊंगा। शौहर ने जैसा कहा, महम ने भी वैसा किया और वो बीवी को मेके पहुंचाकर आ गए। कशमाला के भाई बहन माँ बाप सब उनके मेहमान थे, क्योंकि कशमाला इनको ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बेटे की सूरत में मिलने वाली थी। वो 3 दिन से हॉस्पिटल में थी। हम दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला बखैरियत उन्हें औलाद अता कर दे, जिसकी खातिर वो भाभी महम पर सौतन लाए और इनके दिल को सदमा पहुंचाया था। अल्लाह जाने, भाभी तो दिल से अपना घर छोड़कर मेके गई थी और इतने हौसले से काम लिया था कि सवाल तक ना किया कि कौन मेहमान है। हो सकता है उन्हें शक हो गया हो कि ये कहीं इसकी सौतन तो नहीं, मगर किसी किस्म की बदगुमानी का इजहार नहीं किया कि आखिर सब्र तो सब्र होता है। कहते हैं सब्र का अजर ज़रूर मिलता है। कशमाला ने बेटे को जन्म दिया मगर इसे गोद में ना ले सकी और बच्ची की पैदाइश के वक़्त इस नाजुक मरहले में खुद ही ज़िंदगी की बाजी हार गई। नौज़ायदा को लेकर मैं और अम्मी ने निहाल के घर लाए थे और इस अनमोल खुशी के साथ इनके घर में पहला कदम रखा था, जबकि वो कशमाला की एक मैयत के हमरा अपने ससुर हफीज़ के घर चले गए थे। बहुत सोगवार थे। जब वो तदफीन के मरहले की तकमील के बाद वापस लौटे तो बेहद अफसरदा थे। उनकी हिम्मत नहीं थी कि बीवी को लेने जाते। ये फरीज़ा भी अम्मी को ही सौंपा कि बड़ी खाला, आप जाकर महम को ले आएं। अम्मी ने महम को बताया, तुम जो खुशी अपने शोहर को देना चाहती थी, वो खुशी तुम्हारे घर में तुम्हारी मुंतज़िर है। इस 2 दिन के बच्चे की माँ अब इस दुनिया में नहीं और तुम्हें अल्लाह ने इस उम्र में माँ बना दिया। अब घर में कदम रखने से पहले शुक्र अदा करना। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए घर में कदम रखा और कशमाला के बच्चे को उठाकर कलेजे से लगा लिया। इन दिनों मेरा बच्चा भी शेरखार था और मैं इस काबिल थी कि अपने कज़न के इस नन्हे बेटे को दूध पिलाकर हयात नौ के चंद कतरे अल्लाह की रज़ा की खातिर दान कर सकूं। सुबह शाम मेरा भाभी माहम के पास जाना होता था। वो बहुत खुश थी। बच्चा इनके लिए नई ज़िंदगी की नवेद बन गया था। इस एहसास खुशी ने इसकी बीमारी को शिकस्त देकर उन्हें बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना कर दिया था। कुदरती बात यह कि बच्चे की हकीकी माँ ना रहे तो दुख होता है। कुछ दिन निहाल कशमाला के दुख की वजह से मुरझाए रहे, फिर अपनी बावफा रफ़ीक हयात का प्यार पाकर इस दुख से राहत पा ली। किसी को अख्तियार और दखल नहीं, वो जो चाहे होता है कि वो बेनियाज है और इंसान तो बस मिट्टी का खिलौना है। एक लाचार मकड़ी की मानद अपने ख्वाबों के ताने बाने बुनता रहता है। कभी ताबीर मिल जाती है और कभी जाल उलझ कर टूट जाते हैं। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। एक मरतबा फिर मेरी